دوستوں بہت شکریہ. ہم اس چوک میں پچھلے کئی برس سے نوحہ گری کرتے آئے ہیں. ہم اس چوک میں بہت عرصے سے پروٹیسٹ کرتے آئے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو کچھ سمجھ آئے کہ پاکستان کو کس طرف دھکیلے جا رہے ہیں. ہم پروٹیسٹ کرتے آئے ہیں جب بھی احمدیوں کا قتل ہوتا ہے پاکستان میں, شیعہ کا قتل ہوتا ہے, یا لاپتہ لوگ ہوتے ہیں, یا پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ کچل دیا جاتا ہے, تو ہم ہمیشہ اس چوک میں عوامی ورکرز پارٹی نے اور یہاں کے اور پروگریسو کمیونٹی نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے اور اس جگہ پہ ہم احتجاج رقم کرتے آئے ہیں. لیکن اس دفعہ تو حد ہو گئی ہے. مشال خان جو علم تھا, جو پروگریسو وائس تھا, اس کو قتل کر دیا گیا ہے. قتل کس نے کیا ہے وی ڈونٹ نو. پاکستان میں وہ برائی اس طریقے سے سرایت کر گئی ہے کہ کچھ خبریں ہیں کہ شاید اسی کے پارٹی کے بھی لوگ تھے, کچھ خبریں ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ تھے, بٹ نو بڈی نوز. مطلب یہ سرایت جو مذہبی دہشت گردی لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کر دی گئی ہے, اب اس کا یہ شاخسانہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ بلا تمیز جس نے بھی مشال کا قتل کیا ہے اس کو منظر عام پہ لائے. جو بھی ریومرز گردش کر رہی ہیں, مجھے خوشی ہے کہ اے این پی کے دوست آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن بہت ساری کیا سرائیاں شروع میں ایسی تھیں جنہوں نے بڑی غلط فہمیوں کو جنم دیا تھا. لیکن بہت خوشی ہے کہ پاکستان کا نہ صرف اے این پی آج ہمارے ساتھ کھڑی ہے, ہمیں تحریک انصاف نے بھی ایسے میسیجز دیے ہیں, اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے اور گورنمنٹ کی طرف سے تحریک انصاف کے لوگ بھی ادھر کھڑے. تو ہم خوش ہیں اس بات سے کہ ایٹ لیسٹ مشال خان کو قتل تو کیا گیا ہے, لیکن اس نے ایک راستہ ہموار کیا ہے ایک پروگریسو وائس کو اکٹھے ہونے کا, اور اس کے لیے ہم ہمیشہ توقع کریں گے کہ تمام لوگ ہمارے ساتھ آئندہ بھی اس تمام معاملات میں اکٹھے چلیں گے ہمارے ساتھ. ہم ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہر قسم کے پروگریسو لوگوں کے ساتھ منانا چاہ رہے ہیں تاکہ پاکستان کو ہم اس اندھیروں سے نکال سکیں. ابھی مشال خان کا قتل میں ابھی بات کر رہا تھا کہ کہاں سے یہ اٹھا, اس کی روٹس کہاں پہ ہیں. یہ 30-35 سال پہلے ضیاء الحق نے جو پاکستان میں جو جعلی اسلام نافذ کیا تھا, جو جعلی قوانین اس طریقے کے لے کے آیا تھا, کہ جس نے یہ نوبت لائی کہ پاکستان اس دھانے پہ اب کھڑا ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے, اے این پی کے دوستوں سے, تحریک انصاف والوں سے, پیپلز پارٹی والوں سے, سب سے, مجھے پتا ہے کہ ورکرز ایک ہی طرح کے ہیں, لیڈرز میں کچھ معاملات ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا کے اپنے وائس کو آگے سے آگے لے جائیں گے, کیونکہ یہ ایک دن میں ختم ہونے والا کام نہیں ہے. پاکستان میں یہ کام چلتا رہے گا اور ہمیں اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے, جیسے ہم کئی برس سے اس چوک میں اس جگہ پہ اپنی آواز بلند کرتے آئے ہیں. اس لیے میں خراج تحسین پیش کروں گا ان قربانیوں کو, نہ صرف مشال خان کی ہے جس بے دردی سے قتل ہوا, بلکہ پاکستان میں یہ روایت رہی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی لوگوں کو جیلوں میں جگڑ کے قتل کرتی تھی. نذیر عباسی کا کیس ہمارے سامنے ہے, ناصر کا کیس ہمارے سامنے ہے, لیکن اب انہوں نے اس دھرتی کو اتنا خون رنگ کر دیا ہے کہ اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کس کو قتل کر رہا ہے. اس لیے مجھے مشال خان تو اب مشل ہے ہمارے لیے, اس کا قتل اپنی جگہ ایک بہت افسوسناک پہلو ہے, لیکن اب اس مشل کو لے کے اگر ہم چلیں گے آگے اپنی ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جہاں جہاں بھی لوگ کام کر رہے ہیں, اپنی مشال تیرے خون سے انقلاب آئے گا, مشال تیرے خون سے انقلاب آئے گا. تو اپنی اپنی پارٹیوں میں جتنے میرے دوست ادھر کھڑے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی پارٹیوں پہ تھوڑا سا ایک سٹریس کریں کہ اپنے ورکرز کو, رینک اینڈ فائل کو, ان کی ایجوکیشن پہ بھی توجہ دیں. چونکہ باچا خان کا جو میسج تھا, جو امن کا اور عدم تشدد کا, اب ہمیں نظر نہیں آ رہا صوبہ سرحد میں بھی, پختونخوا میں بھی. تو یہ ایک آئی تھنک
पार्टियों को सोचने की ज़रूरत है कि रैंक एंड फाइल को तरबियत कैसे देनी है। जैसे अवामी वर्कर्स पार्टी ने हमेशा हम बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, हमने हमेशा वॉइस उठाई है हर बंदे के लिए, अपने बलूचिस्तान के लोग हों, पाकिस्तान में अक़लियतों के लोग हों, हम हमेशा खड़े रहे और इंशाअल्लाह हम फ्यूचर में भी ये सब करते रहे। तो मैं मशाल खां के लिए फैज साहब का एक छोटा सा 2 मिसरे हैं वो पढ़ के मैं ख़त्म करूँगा कि कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलग और निकलेंगे उस्ताद के काफिले। थैंक यू वेरी मच। मैं दरख्वास्त करूँगा ANPU के प्रेसिडेंट जनाब महफूज जान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, जैसे मेरे दोस्त ने फरमाया, हम इस चौक में जब भी हमारी धरती पे कोई ज़्यादती हो, जुल्म हो, हम यहाँ खड़े रहते हैं, चाहे वो सीपैक के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर जो कातलाना बम धमाका हुआ था खुदकश उसके ख़िलाफ़ हो, हम यहाँ खड़े रहे हैं क्योंकि हम बादशाह खान के सिपाही हैं, हम अदम तशद्दुद के अलंबरदार हैं। हमने सिर्फ लंदन में आवाज़ नहीं उठाई बल्कि हमारी पार्टी वहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद है। हमारी पार्टी ने ऊपर ग्राउंड पर 897 लोगों की शहादतें दी है, कुर्बानियाँ दी है। हमने किसके लिए कुर्बानी दी है? हमने इस मुल्क में जदोजहद की है, आज़ादी के लिए, नफरतों से आज़ादी के लिए, तशद्दुद से आज़ादी के लिए। बादशाह खान के सिपाहियों ने मैदान अमल में खड़े होकर कुर्बानी दी है। क्यों कि आदमी तशद्दुद पैगम्बरी फैसला है, क्योंकि हमारे पैगम्बर भी तशद्दुद के खिलाफ थे, इसलिए हमने उस पैगम्बरी फैसले फलसफे को हाथ में लिया है और हम तशद्दुद को चैलेंज किया है। हमारे अलावा किसी और पार्टी के किसी ने मुर्गी को हाथ नहीं लगाया। ये अवामी नेशनल पार्टी थी जिसने ग्राउंड पे खड़े होकर इन जाबिरों को, इन जालिमों को, इन कातिलों को, इन नफरतों के पुजारियों को चैलेंज किया और उनको उनके घर में जाके चैलेंज किया। और आपने देखा कि हमने आज मशाल खान भी पुख्तून स्टोन फेडरेशन की पैदावार है, मशाल खान भी बादशाह खान का सिपाही था। आज किस साजिश के तहत उस बादशाह खान के सिपाही की आवाज को खामोश कर दिया गया? ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उसको निकाले, उसकी तहकीकात करे कि कौन इस साजिश में मुलविस था। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया मुलविस थी, PTI के लोग मुलविस थे, जमात इस्लामी के मुलविस थे, पुलिस मुलविस थी, हमारे पुख्तून स्टूडेंट फेडरेशन के चंद नादान दोस्त मुलविस थे। अगर वो मुलविस थे, भाई ने कहा कि पार्टियों के रहनुमाओं से कहो। पार्टी के रहनुमा ने, असफंदियार खान ने उस दिन अलग कहा, बबांगी दोहल कहा कि अगर मेरा बेटा भी इसमें मुलविस हो उसको भी फांसी दो। हमारा तो यह स्टांस है क्योंकि हम अदम तशद्दुद के पुजारी है, हम बादशाह खान के सिपाही है। सवाल ये पैदा होता है कि आज जिस मुल्क में इमाम बारगाहें महफूज नहीं, जिस मुल्क में मस्जिदें महफूज नहीं, जिस मुल्क में बाजार महफूज नहीं, जिस मुल्क में स्कूल महफूज नहीं, क्यों ऐसा क्यों होता रहा है? इसलिए कि इस मुल्क में गुज़िश्ता 40 साल से स्टेट स्पॉन्सर्ड हो रहा है ये सब कुछ। हमारे रियासती इदारे इसमें मुलविस हैं। हमारे रियासती इदारों को अपने गुड तालिबान और बैड तालिबान के चक्कर में हमारे माशरे को बर्बाद कर दिया है। आज हम इस मुल्क पे खड़े होकर दुहाइयां दे रहे, कोई पूछने वाला है? किनसे पूछे कि भाई खुदा रहा ये खून की होली खेलना बंद कर दो, अपने आइंदा वाली नस्लों पर अब जो है रहम खाओ, बहुत हो गया। इस मुल्क में बेनजीर भुट्टो जैसी अजीम शख्सियत को तुम लोगों ने खत्म किया। बहुत सारे और लोग हैं, हमारे बशीर बिलोर को कत्ल किया, हमारे मियां इफ्तिखार हुसैन को, हमारे मियां इफ्तिखार हुसैन के अकेले जिगर गोशे को कत्ल किया। क्यों? उसका गुनाह क्या था? उसका गुनाह यह था कि जब ये बम धमाके करते थे वो पहुंच जाता था। उसका गुनाह यह था कि वो हमारे माँ और बहनों के उड़ते दुपट्टों पर जो उनके सरों पे चादरें डालता था, उनके लिए खून का बंदोबस्त करता था, इसलिए उसको कत्ल किया, उसको खामोश किया। मगर उनको बताते कि जुल्म का सीना चीर के देखो, जाग रहा है नया सवेरा, ढलता दिन मजबूर सही, चढ़ता दिन मजबूर नहीं, और रात की राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। हम तकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, हम बिकने वाले नहीं, हम इनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। हम इन नफरतों के फैलाने वालों को, इन तारीखियों को फैलाने वालों के सामने सरेंडर करने वाले नहीं। ये हम प्रोग्रेसिव कुव्वत जितनी है पाकिस्तान में,
चाहे पीपल्स पार्टी है, अवामी वर्कर्स पार्टी है, दूसरी है, उनको चाहिए कि वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो। कम से कम हमारा एक एजेंडा हो कि इस मुल्क में ये जो मुलागर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो सऊदी अरब के पैसों से और अमेरिकी डॉलरों से हमारे लोगों के जहनों को बर्बाद किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मशाल खान का कत्ल है, ये जो हुआ है, ये एक दिन का वाक़या है, ये वैसे हुआ है, इत्तेफाकी तौर पर हुआ है? नहीं, 40 साल की रेडिकलाइजेशन है। ऐसी रेडिकलाइजेशन है जिसमें आप देखें कि साइंस के क्लास में प्रोफेसर लोगों की इतनी इतनी दाढ़ियां होती है और वो बच्चों को साइंस पढ़ाने से पहले मसवाक और अतर के वो फवायद बताते हैं। ये सोसाइटी हो गई है। इस सोसाइटी में आप सच और हक की आवाज बुलंद करना जो है ना, अपनी मौत को दावत देने का वो है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमने, मैं ज्यादा बात नहीं करना था, बयान भी करें, वो भी बात करेंगे, दूसरे साथी भी करें, बात करेंगे। सवाल यह है कि आज हम मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल सोसाइटी इतने गिर गए हैं कि लोग मशाल खान का जनाजा पढ़ाने तक नहीं जाते, जरूरत नहीं कर सकते। ये तो आप जैसे सिविल सोसाइटी के लोगों ने सोशल मीडिया पर इसका इतना हंगामा उठाया कि चीफ जस्टिस को भी मुंह मोटो लेना पड़ा। 3 दिन बाद वज़ीर आज़म को भी होश आया और आज खुदा का शुक्र है कि आज दुनिया के कोने कोने में मशाल के इस बहीमाना कत्ल पर, इस बर्बरियत पर, इस वहशतनाक अमल पर सरापा एहतजाज है। सब दुनिया एहतजाज कर रही है। मैं मशाल खान के वालिद साहब को, उसके खानदान को, तमाम वो लोग जो उसके गम में शामिल हैं, मैं उनको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह मशाल का ये कत्ल जो है, ये उसके साथ ज्यादती जो है, हम इसको रायगाह नहीं जाने देंगे, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो भी इसमें मुलव्वस हुआ, यूनिवर्सिटी को देखो, ये अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती कि उनके कत्ल होने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दे कि जी वो ब्लास्फेमी में इन्वॉल्व था। आज पूरा उसका गांव है, उसका खानदान उससे सदियों से रह रहा है, किसी ने एक मरतबा भी नहीं कहा कि इसके वालिद ने या इसने या मशाल खान ने जो है कोई ब्लास्फेमी की है। वो भाई किसी ने ब्लास्फेमी कर भी दी है तो ये रियासत का काम है। अगर किसी ने ब्लास्फेमी कर भी दी है तो ये रियासती इदारों का काम है, ये अदालत का काम है, ये हुजूम का काम नहीं है। मगर जिस मुल्क में कानून मुल्लाओं के हाथ में आ जाए, जहां पर बैंड ऑर्गेनाइजेशन ओपन जलसे करते फिरते हो और रियासती इदारे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वहां पर फैसले पर अदालतों में नहीं, हुजूम चौकों पे करते हैं, चौराहों पे करते हैं। इसलिए इसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा फर्ज बनता है कि हम आवाज उठाएं मिलकर। यहां लंदन में भी और यूरोप के दूसरे इलाकों में भी हमारे साथी कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी और सोशल मीडिया पर भी इसका आवाज बुलंद करते रहेंगे। इंशाअल्लाह खून रंग लाएगा, शहीदों का खून एक दिन जरूर लाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। मशाल तेरे खून से इंकलाब आएगा, मशाल तेरे खून से इंकलाब आएगा। Now I'd like to request Raza Ali from Never Forget London to come and share a few words. कई लोगों में चल जाएगा। थोड़ा सा आगे हो जाए, सड़क क्लियर कर दो ताकि वो। थैंक यू एवरीवन आप लोगों के आने का, और मैं खास तौर से अप्रिशिएट करता हूँ जो मेरे एनपी के दोस्त ने बातें की। ऑलमोस्ट यही बातें हम सबको बोलना बहुत ज़रूरी है, एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। एक और बात मैं ऐड करूँगा, जहाँ तक जनाजे की बात थी, वो ये है कि हमें इसमें भी अब इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लोग मुकाबला करते हैं मुमताज़ कादरी के जनाजे पे की शिरकत में, हम जो वर्सेस मशाल के जनाजे की शिरकत में, कि कितने लोग आए थे। अगर हम जानते हैं कि मशाल को शहीद है, एक हिसाब से शहीद किया गया है, तो हमें भी ज़रूरत है कि हम ऐसे मौक़ों पे सामने आएँ और शिरकत करें, उसके जनाजे पे उसके वालिदैन को अकेला ना छोड़ें। एक और बात मैं कहूँगा कि अक्सर ये बात की जाती है कि स्टेट को एक्शन लेने दिया जाए, लेकिन
स्टेट एक्शन किस पे लेगी? उन लॉज पे जो कि ज़ियाउल हक और उसके बाद आए हैं। Shame! 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 पाकिस्तान के पहले 40 सालों में 8 लोगों को ब्लास्फेमी के ऊपर ट्राई किया गया था। उनमें से अक्सर लोगों को केस डिसमिस हो गया था, बाकी लोगों के बहुत नॉमिनल से रिस्पॉन्स आया था स्टेट के पास। उसके बाद से अब तक आखिरी 30 सालों में कई सौ लोगों को इन लॉज के तहत ट्राई कर दिया गया है, और इफेक्टिवली उसका मतलब ये होता है कि या तो वो मारे जाएंगे या फिर वो ज़िंदगी भर जेल में सड़ते रहेंगे। और हम अक्सर ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान की सोसाइटी में विजिलेंटिज्म या लॉ के ख़िलाफ़ किसी को मारना इस वजह से होता है कि लॉज को फॉलो नहीं किया जाता, कि अगर स्टेट एक्शन ले तो मॉब्स ना आए। लेकिन शायद ये बात सही है। मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए कि सोशल सोसाइटी में जो एटीट्यूड्स होंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे आपके जो लॉज को। अमेरिका की मिसाल ली जाए तो जो क्यू क्लक्स क्लैन, जो रेसिस्ट वाइट सुप्रीमेसिस्ट लोग हैं, उनकी ताकत उस वक्त ख़त्म हुई है जब सिविल सोसाइटी ने फैसला किया कि ये लॉज ओवरटर्न करने हैं, उनको जिम क्रॉ लॉज ओवरटर्न करने हैं। वरना तब तक आपकी मॉब्स एम्पावर्ड होंगे, उनको नजर आएगा अगर किसी बंदे को स्टेट ने कत्ल करना ही है तो हम क्यों कत्ल करते हैं। और फिर हम ये देखें कि ये लॉज किसने इन्फोर्स किए हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि 1991 में नवाज शरीफ की हुकूमत जिसने डेथ पेनल्टी लाजिम कर दी थी ब्लास्फेमी केसेस के, आज ये नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि ये लिबरल हो गया है, ये प्रोग्रेसिव हो गया है। अब से 2-3 हफ्ते पहले तक यही नवाज शरीफ की हुकूमत जो है दुनिया भर के अंदर ग्लोबल वॉर ऑन ब्लास्फेमी कर रही थी, और लोगों से कही थी कि फेसबुक और ट्विटर पे जो है जो ब्लास्फेमी कर रहे हैं उनका पता लगाएं। और हमारी बाकी पार्टीज भी इसमें मुलव्वस हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान ने ही एम्पावर किया है रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट को, जमात इस्लामी को, कि वो एजुकेशन के अंदर इतना बड़ा रोल प्ले करें। Shame! 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 आज अगर वो अच्छी बातें कर रहा है लेकिन उसके पास जो है नहीं छुपाया जा सकता। हमारी पीपल्स पार्टी का एक इतना बड़ा लीडर सलमान तासीर को कत्ल कर दिया गया, उसके बाद से लगता है उनकी स्पाइन नहीं है, वो कुछ नहीं बोलते, अगर वो बोलते हैं तो बहुत छोटे वाले बोलते हैं। हमें इन सब को इंकरेज करना है कि ये आगे बढ़ें। हमारे लिए फौज को कह देना, स्टेट को कह देना, ज़ियाउल हक को बोल देना बहुत आसान है, लेकिन हमें ये भी करना पड़ेगा कि हमारे पॉलिटिशियंस ने पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए इन सब अनासर को बहुत अरसे तक टॉलरेट किया। तो हम कॉल ऑन करते हैं कि हमारी स्टेट ऐसे लॉज को चेंज करे या एड्रेस करे जो कि इतनी ज़्यादा सोशल विक्टिमाइजेशन कॉज कर रहे हैं। और फाइनली, बिकॉज जो भी इन लॉज के खिलाफ बात करता है उसको समझा जाता है कि वो मुसलमान नहीं है, वो दीन से दूर है। पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे मुसलमान ममालिक के अंदर ब्लास्फेमी लॉज हैं, कहीं पर इतने सीवियर नहीं, ना बांग्लादेश में, ना मलेशिया में, ना इंडोनेशिया में, ईरान तक में के लॉज जो हैं ब्लास्फेमी लॉज पाकिस्तान से कम सीवियर हैं कि आपको डेथ पेनल्टी लगानी ही हो और कोई माफ़ी ना हो। तो ये कह देना कि सारे मुसलमान, या अगर आप अच्छे मुसलमान हैं तो आप ब्लास्फेमी लॉ के खिलाफ बात नहीं कर सकते, ये जो है सबसे बड़ा झूठ है इन मुल्लों का। और इसी वजह से ये लॉज जो आज तक हमारी पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो सकते कि जैसे ही कोई बात करेगा वैसे ही बोल दिया जाएगा कि पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है और खिलाफ बात नहीं किया। Shame! Shame! थैंक यू। मशाल तेरे खून से इंकिलाब आएगा, मशाल तेरे खून से इंकिलाब आएगा। ये किसका लहू, ये कौन मरा, बदमाश रियासत बोल जरा, ये किसका लहू, ये कौन मरा, बदमाश रियासत बोल जरा, ये किसका लहू, ये कौन मरा, बदमाश रियासत बोल जरा, ये किसका लहू, ये कौन मरा, बदमाश रियासत बोल जरा। अभी मैं दरख्वास्त करूँगा AWP के वाइस प्रेसिडेंट जनाब मुज़म्मिल मुमताज़ साहब से जो आए हैं।
comrades, Awami Workers Party, friends of ANP, and other progressive political forces are gathered here today to condemn the barbaric killing of Mashal Khan. It is sad and disgraceful that yet again another progressive mind of Pakistan, Mashal Khan, a brilliant student of journalism, was brutally killed in the name of religion. We should not be afraid to say that the blasphemy law in Pakistan is widely misused and it helps to protect such barbaric killers. Comrades, over the past several years, several other progressive voices were killed, and Junaid Hafiz, a former lecturer of English, now withering away in prison. He is even facing difficulties to find a lawyer and representation of his own choice at court because his previous lawyer, Rashid Rahman, was brutally killed. These barbaric and brutal events yet again re-emphasize the fact that the psyche of the common people in a society is the psyche given by the ruling class. In this neo-imperialist world, religion is widely used as a tool to keep the poor masses ignorant of the affairs of the corrupt political elite. Before and after the birth of Pakistan, religion has equally been used as a tool to suppress the progressive voices, as a tool to keep the working class and the poor masses ignorant of the socio-political and economic affairs. However, General Zia-ul-Haq took this religious fanaticism to a whole new level. General Zia-ul-Haq, in collaboration with his American imperialist masters, indoctrinated fundamentalism in Pakistan. And since General Zia-ul-Haq's period, our children are being taught a curriculum in Pakistan which promotes hatred, which promotes exclusion of progressive thinking based on distorted history. And comrades, it's disgraceful that the federal government and other political parties which raise slogans for a change in Pakistan and the political elite of Pakistan, they have done nothing beyond issuing brief statements to condemn the brutal killing of Mashal Khan. And let me tell you, they will not do anything beyond issuing these statements. Why? Because if they do something to eliminate this indoctrinated fundamentalist thinking from the society, then this is likely to challenge their own corrupt power in Pakistan. And comrades, in this scenario, I would say that we should keep raising our voices. Don't be afraid to keep raising your voices against this fundamentalism. Don't be afraid to keep raising your voices against any brutal killing of Mashal Khan or others who were brutally killed like him. And I will sum up with a few lines from a Pakistani poet. یہ میری پاک دھرتی جہاں شب کے پجاری قتل کے فتوے اٹھائے دندناتے جگنوؤں کا قتل کرتے ہیں. منادی ہے کہ جگنو جب جگمگاتے ہیں تو سورج دیوتا کی شان و شوکت مان پڑتی ہے. شکریہ. ملا سے لیں گے آزادی, ملا سے لیں گے آزادی, ملا سے لیں گے آزادی, تنگ نظری سے لیں گے آزادی, تعصب سے لیں گے آزادی, تعصب سے لیں گے آزادی, تنگ نظری سے لیں گے آزادی. میں درخواست کروں گا حبیب جان صاحب سے تو آئے اور اظہار خیال کریں. ہم کو خود شوق شہادت گواہی کیسی, فیصلہ کر بھی چکو مجرم اقراری کا. حادثے پل بھر پہ تو نہیں ہوئے, صدیاں لگی ان باتوں پہ. یہ چوک سیاسی کارکنوں کے لیے تو جنت ہے, ہماری یہ ایک طرح کی ٹیمپرری ریزیڈنٹس ہے, ہم آتے رہے. لیکن یہاں پر
माहिर कानून पहले मुस्लिम QC भी खड़े। कादरी साहब, आप इस बुढ़ापे में अपने मिशन को आगे बढ़ाएं। इस कौम को अपना बयानिया बदलना पड़ेगा। जिस मुल्क में लोग अपनी अपनी मसलियत के तहत अपनी अपनी दुकानदारियां सजाते हैं, मुल्ला अपनी दुकानदारी अपने नाम से अपनी तशरीह करता है, जरदारी मफाहमत के नाम पे अपनी तशरीह करता है, नवाज शरीफ करप्शन के मामले पे अपनी तशरीह करता है, हमीद गुल अपने मामले पे अपनी तशरीह करता है। तशरीह यही थी मुल्क की कि मेरे नबी ने कहा था रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूं। अगर पहला कत्ल होता नबी की शान में तो उस यहूदी औरत का होता जिसने उस पे रोज कचरा फेंका था। यह साबित हुआ कि नबी के दाएं और बाएं बाजू पर हजरत अली करार रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला जैसे पैगंबर थे, रज़ियल्लाहु अन्हु थे, साहबी थे, खालिद बिन वलीद थे, उमर फारूक थे, लेकिन किसी ने उस औरत पर जो रोज कचरा फेंका करती थी न तलवार चलाई, न उसके घर के आगे कोई मुजाहरा किया या कोई एहतजाज किया। आज ये मजहब के ठेकेदारों ने, आज इन मुल्लाओं ने, इन ज़ियाउल-हक के पैरेकारों ने नबी के नाम पे जो तमाशा लगाया है, हम दुनिया में अपने नबी को डिफेंड नहीं कर सकते। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हर बार का अल्लाह ने अपने लिए कहा कि रब्बुल लिल आलमीन, और उस नबी के लिए कहा कि रहमतुल लिल आलमीन। दूध में पानी मिलाने वाला, मसालों में मिलावट करने वाला, अपने भाई माँ बहन का हक खाने वाला नबी के नाम पे अपनी दुकानदारी सजाकर इस्लाम के सर्टिफिकेट बांटता है। इस्लाम ने, हर नबी ने, हर मजहब ने इंसानियत का एहतराम का दर्ज दिया है, लेकिन वाहिद हमारा मुल्क है ममलिकत पाकिस्तान, जहां पर ऐसे कहा गया कि जनरल ज़ियाउल-हक ने अपने इक़्तिदार को तुल देने के लिए तालिबान भी बनाए, मदरसे भी बनाए, मसाजिद भी बनाई, दहशतगर्द भी पैदा किए। हिलरी क्लिंटन की तरह हिम्मत पैदा करो, अमेरिकन की तरह हिम्मत पैदा करो और कहो कि हमने दहशतगर्द पैदा किए थे, हम कौम से माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो। आज के बाद कोई दहशतगर्दी करेगा तो उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। हिलरी ने बार कहा, आज अमेरिका की CIA कहती है कि दाइश हमने बनाई, मजहबी गुंडे हमने बनाए, हमें माफ कर दो। हम में हिम्मत नहीं है कि हम कौम से माफी मांगे, शहीद भुट्टो के मजार पर जाके माफी मांगे, जमहूरियत पसंदों से माफी मांगे कि हमें माफ कर दो। आप थोड़ी अमेंडमेंट करके कह दो कि जनाब उस वक्त रूस से हमें खतरा था, हमने तालिबान बनाए। जिस औरत को आपने गाजी की बीवी कहा, जिस बेटे को, जिस मां को आपने शहीद की बेवा कहा, उसी औरत को आपने पहाड़ों पे भेज दिया। एक रात आपने अपना हीरो बनाया, दूसरी टेलीफोन कॉल पे आपने उन्हें दहशतगर्द बना दिया। आज वही दहशतगर्द जो कल के हीरो थे, जो कल के गाजी थे, जो कल के मुजाहिद थे, आज तालिबान की सूरत में, दाइश की सूरत में मेरे मुल्क के बच्चों का कत्ल कर रहे हैं, मेरी माओं को बेवा कर रहे हैं, मेरी बहनों को बेवा कर रहे हैं। आप हिम्मत पैदा करें और कहें जनरल साहब, बाजवा साहब, जब अपना इंटरेस्ट हो तो सब चीजें अच्छी हो जाती हैं। आप कहें जो कल के गाजी थे, जो कल के मुजाहिद थे, उन्हें कंपनसेट करें, अमेरिका से बात करें, बरतानिया से बात करें कि जनाब आपके कहने पर, आपके मशवरे पर हमने तालिबान बनाए थे, अब हम ये खत्म करना चाहते हैं। उन्हें कंपनसेट करें, डॉलर दें, माल दें, प्लॉट दें, परमिट दें, फिर कहें मुजाहिद भाई, मेरे गाजी भाई, तुम्हारी जरूरत हमें थी, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम ये प्लाट लो, ये परमिट लो, ये नौकरी लो और मेरे मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर दो, मेरे बच्चों को यतीम मिस्किन न बनाओ। क्योंकि जब पार्लियामेंटेरियन प्लाट ले सकते हैं, परमिटें ले सकते हैं, तो ये कल के जो ये बेचारे आपके हीरो थे, जिनको आपने दहशतगर्द बना डिक्लेयर कर दिया, उनके साथ कोई मुज़ाकरात करो, कुछ मामला तय करो, कुछ मसले हल करो, ताकि पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी खत्म हो। वरना यकीन करें सर, ये WP के लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा, हमारी किस्मत में यही होना है। कल तासिर मारा गया, कल मसाल मारा गया,
कल परसों हम और आप ही हो सकते हैं, क्योंकि ये सच सुनने के आदी नहीं है। और एक और बात, आखिरी बात आपकी परमिशन से, मेरे फौजियों, मेरे जर्नलों, मेरे हीरो, मेरे गाजियों, अमान भाई एक मिनट, पॉलिसियां मुल्क के लिए बनती हैं, मफाहमतें नहीं होती। कोई पॉलिसी बनाओ तो मुस्तकिल बनाओ। ये नहीं कि आज जनरल रायल शरीफ चले गए तो उनकी फाइलों को मट्टी पाओ वाला मसला ना बनाओ। कल राह निजात हुई, फिर ज़रब अज़ब हुआ, आज रिदुल फसाद है, कल कोई जनरल नया आइडिया लेकर आए। नहीं, पॉलिसियां एक होती हैं। पार्लियामेंट को डिबेट करनी चाहिए, फौज को डिबेट करनी चाहिए कि कल का पाकिस्तान कैसा होगा, कल का पाकिस्तान कैसा होगा। सऊदी अरब का फॉलोवर होगा या ईरान का फॉलोवर होगा या कायदे आजम का पाकिस्तान होगा। यही हमारी निजात है। वरना यकीन करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कह दिया है कि मुसलमान आपस में सब भाई भाई हैं, तफर्रुका पैदा ना करो। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और हम मुसलमानों की हिफाजत करें, हम पठानों की हिफाजत करें, हम बलोचों की हिफाजत करें, हम सिंधियों की हिफाजत करें, हम पंजाबियों की हिफाजत करें, जो जितने भी हमारी माइनॉरिटीज उनकी हिफाजत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मसाल खान तेरे खून से इंकिलाब आएगा, मसाल तेरे खून से इंकिलाब आएगा, सलमान तासिर तेरे खून से इंकिलाब आएगा, सलमान तासिर तेरे खून से इंकिलाब आएगा। सर ने थोड़ी सी बात की कि तमाम मुसलमानों की हिफाजत करें, ना सिर्फ मुसलमानों की हिफाजत करें और सिर्फ कह दिया माइनॉरिटीज़ की। नहीं, माइनॉरिटीज़ नहीं है वो, उनके नाम हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, अहमदी हैं, सिख भी वहाँ पे रहते हैं। तो अगर मुसलमानों का नाम लिया जाता तो उनका भी नाम लिया जाना चाहिए, उनको माइनॉरिटीज़ करके आइसोलेट ना कर दो। अच्छा सर, अमानुल्लाह खान साहब बात करेंगे। दोस्तों, साथियों, वली खान और मैं जेल में इकट्ठे रहे, गुजरात जेल में, और इजहार आज़ादी के लिए मैं फांसी कोठी में रहा हूँ। अभी कल ही मैंने मिसाल का नाम लेने ही वाला था, उन्होंने प्रेस को कहा कि इस आदमी को रिपोर्ट ना करें। ये जो मैं नज़म दे रहा हूँ आपको, इसको पढ़िएगा। अगर आज अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म अला रहमत जिंदा होते तो मिसाल के कातलों के ऊपर वो कत्ल का मुकदमा करते। ये इजहार आज़ादी का कत्ल है। इजहार आज़ादी का कत्ल जो है वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर का कत्ल है। और जबकि मैंने सिर्फ ये कहा कल यहाँ, मैं शायर भी हूँ, सहाफ़ी भी हूँ और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ, पीपल्स पार्टी का फाउंडर लीडर जरूर हूँ, लेकिन सोशलिज्म का हामी हूँ। भाई, सोशलिज्म का नाम लेना लेनिन को खुदा के हजूर में अल्लामा इकबाल ने पेश किया, और फिर अल्लाह ताला ने लेनिन की वो नज़म सुन के उन्होंने कहा, फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ मेरी जमीन पे बहुत जुल्म हो रहा, जाके आजाद करो। मिसाल खान को जिन लोगों ने कत्ल कराया है वो असल में दहशतगर्दी और बदउनवानी का मुरक्कब है। इन मुल्लाओं को, हम मौलवियों के खिलाफ नहीं है, इस्लाम के ये ठेकेदार नहीं है। और ये मैं हाई कमीशन को भी कहना चाहता हूँ, खबरदार अगर तुमने इजहार आज़ादी पे कोई पाबंदी लगाई। अमानुल्लाह खान को तुम नहीं जानते, हमने अगर माल नहीं बनाया तो ये जुर्म नहीं है, यानी कि जो माल बनाए। एक में नज़म के कुछ अशार हैं, सुनिए। आज अगर मौजूद होते हजरत कायदे आज़म और हजरत इकबाल तो वो देते ये हुक्म कि फौरी सजाए मौत हो पर कातलाने मिसाल। ये जैसे ही मैंने बात कही, ये मुजाहिद गवाह है और मीडिया के दोस्त हैं। मैं फांसी कोठी में रहा हूँ मीडिया की आज़ादी के लिए। उनके साथ फरमाने लगे, अरे हम तुम्हारी चाय पीने नहीं आते, कि खबरदार अमानुल्लाह खान की नज़म को पब्लिश नहीं करना। अरे इतनी ज्यादती, अरे इतनी ज्यादती। अगर इकबाल के यौम विलादत के मौका पर मैं एक शहीद का, एक नौजवान का, जिसके ख्वाब थे
क्या ख्वाब थे? ये नज़म जरा सुन ले। उम्र हो गई पाकिस्तान की 70 साल। अरे नए नए जो आए हो हाई कमिश्नर बेटा सुन लो, कायम है आज भी तेरे पाकिस्तान का इकबाल। तेरे नगमे तेरी नज़में है लज़वाल। अजीम लेनिन का नाम लो एहतराम से, को खुदा के सामने पेश किया था इकबाल, जब तुमने कर दिया कमाल। तूने तो कहा था कि खुदा के सामने, तूने तो कहा था मुसलमानों को खत्म करना होगा गुलामी वास्ते साथ। तूने तो खूब फसाहत से बताए थे मुस्लिम उम्मा के असबाबे ज़वाल। और कहा था, तूने क्या कहा था? सुना कहा था पढ़ सबक शुजाअत का, अदालत का, अमानत का, ताकि ना आए मुसलमानों पे ज़वाल। पाकिस्तान में आज इस्मते अमानत को है ज़वाल ही ज़वाल। हर दुश्मन अवाम और मुक्तदर बना रहा है दबादब धराधर हराम बाग। ये जैसे मैंने नाम लिया इनके तन बदन में आग लग गई। आगे सुने, आपके मौजू पे आ रहा हूँ। बदउनवान मुल्ला और मलूकियत, बदउनवान मुल्ला और मलूकियत व दहशत गर्दी के आमाल बजिद हैं कि मलूकियत और जुल्म के खिलाफ आजान न दे कोई हक गो बिलाल। ये बिलाल हकी का भी दुश्मन है। साम्राज्य और गुलामी के खिलाफ कर बोले मर्दान में। मैं मर्दान गया हूँ, मर्दान में मेरे दोस्त हैं। मर्दान में केपीके यूनिवर्सिटी का अजीम तालिब इल्म मिसाल। तो क्या होता उसके साथ? सुनो एम्बेसी वालों, आओ मैं तुम्हें सुनाऊं ग्रामर क्या होती है डिप्लोमेसी की। तुमसे मैं ज्यादा अंग्रेजी जानता हूं। तो क्या करते मुल्ला? कौन सा मुल्ला? इबलीसी मुल्ला। इबलीसी मुल्ला, इबलीसी मुल्ला कत्ल करते हैं मिसाल को मान दे दज्जाल। अरे किसी ने ये ट्रिब्यूट नहीं पे किया। तेरी नज़म लेनिन खुदा के हजूर में फरिश्तों को जो हुआ हुक्म मिन जानिबे खुदाए जुल जलाल। लगता है उसी में है आलाम का हल बराए मादरे वतन। मैं आपके साथ हूँ। मैं एक आजादी इजहार, आजादी इजहार, मिसाल शहीद को सलाम। मिसाल तेरे खून से मैं आखिर में दरख्वास्त करूंगा, हम चाहते हैं यूथ पे एंड करें और हमारी यूसीएल के दोस्त का I'll speak for just a few minutes. हमने ये नारा बनाया। Sorry, could we have the attention, please? Please पीछे जरा थोड़े से, if you could all rally up. हमने ये नारा बनाया, मिसाल तेरे खून से इनकलाब आएगा। 2-3 साल से मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। हमने इस तरह के बहुत से नारे बनाए, स्पेशली आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक के बाद से। लेकिन हमने क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं। इसकी वजह मुझे पता है, अगर किसी और को नहीं पता, और मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ ANP के दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं, PTI के दोस्त हैं। इनकलाब तब आता है जब आप पावर में हो और मीनिंगफुल चेंज लाएं। मीनिंगफुल चेंज कैसे लाया जाता है? एजुकेशन पे काम करके, हेल्थ पे काम करके, किसी का हक ना मारा जाए, मतलब जस्टिस पे काम करके। यहाँ खड़े होके धुआंधार तकरीरें करने से कोई चेंज नहीं आएगा। अफसोस की बात यह है कि यूथ में से कोई ना इन्वॉल्व होना चाहता है, ना कोई इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि उसके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे स्पीच दूंगा, मुझे घर जाके 3 फोन आएंगे कि आपने वहाँ स्पीच क्यों दी? पाकिस्तान आपने वापस तो आना है ना।
आना है मैंने पाकिस्तान वापस और हरे पासपोर्ट पे ही आऊंगा। हम यहाँ खड़े होके बड़ी बड़ी तकरीरें करेंगे कि हमारे लीडर्स ने ये कहा, हमारे लीडर्स शहीद हुए, लेकिन हमने पावर में आके क्या उखाड़ा है, क्या किया हमने पावर में आके? और अफसोस की बात यह है कि मैं सिर्फ पार्टीज को टारगेट नहीं करूंगा, मैं अपने आप और अपनी इंडिविजुअल लोगों पे भी करूंगा। हमारा जहाँ दिल चाहता है हम लॉ तोड़ते हैं, वो चाहे यूके में हो या हम वापस जाके तोड़ें। बहुत अफसोस की बात है, सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे अंदर। जहाँ लाइन तोड़ने का मौका होगा हम लाइन तोड़ेंगे, किसी का हक मारना होगा हम हक मारेंगे, बायस जर्नलिज्म करेंगे। And I urge all of you to at least give the youth a platform, give yourselves a platform and work towards a meaningful change. We don't want any more cases like these coming forward. But unfortunately, I don't see a ray of hope. I don't see any light at the end of the tunnel. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Keep watching TV 7 at 6. देखते रहिए।